Okay, a very good evening to one and all. So let's start with the discussion of the paper 2. We have completed till question number 120. So today we will be starting with 121, right? And quickly go through it. So let's have a look at question number 121, which is a very old question. Like it used to come in the era of 2012, 14, 13, right? Then they completely vanish, right? And then they again are coming back, right? So one thing you have to understand that there are events which are independent and which are uh, like in these kind of events, the happening of one event do not depends upon other, right? So let's have a review of the question that what it says. Question number 120 will say is two event A and B are independent, then which of the following expression and probabilities are correct, right? It's a good question, and those who have studied the Bayes theorem in their earlier time, they might have done these inequalities. But first, let's have a look at the options, right? Let's have a look at that. Yeah. So if you say that if the two are independent, right, then we can say that both of them are independent. Yeah. So first, let me tell you the what is the meaning if they are independent. So let me clearly mention you this symbol A intersection B. What does it mean? I'm telling you. It means P A, right? Probability of A intersection probability of B, right? So it is P A. Just a minute. Yeah, it is P A intersection P B, right? Divided by P B. This intersection basically means multiply, right? So I would say it will be like, rather than writing this, I could have written this that P A intersection B, and then here we can multiply. That means that. So now let's solve these inequalities and you will understand what if the events are independent. So for this expression, we can clearly say that P A intersection B divided by PB. P A intersection B means P A multiply with PB. राइट, इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है पीबी, नीचे भी पीबी है तो ये आ जाएगा पीए. तो पी ए बाय बी एक्चुअली पी ए होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ द बोथ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. उल्टा करूं, ठीक है, उल्टा करके देखता हूं उसमें क्या आता है. तो पी ए बाय बी पी ए है, ये ध्यान रखना है ना. ऐसे ही अगर मैं इसका उल्टा करूं, मैं अगर लिखूं पी बी इंटरसेक्शन ए, तो ये क्या हो जाएगा, पी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय पी ए. सो इसको जब आप सॉल्व करोगे, दिस विल कम आउट टू बी पी बी इंटू पी ए डिवाइडेड बाय पी ए. सो इट विल कम्स आउट टू बी पी बी ओनली, राइट. तो ये आपको माइंड में रहना चाहिए कि एक्चुअली में क्या निकल के आता है. अब जब आप सॉल्व करोगे चारों ऑप्शन को कि इनमें से कौन करेक्ट है, तो आपको खुद ही दिख जाएगा. देखो इस एक्सप्रेशन को पकड़ लो, तो इट सेज दैट पी ए बाय बी, ये क्या हो जाएगा भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी. फर्दर सॉल्विंग इट कम्स आउट टू बी पी ए इंटू पी बी. इंटरसेक्शन का मीनिंग पी बी होता है, राइट, मल्टीप्लाई होता है पी बी. तो अल्टीमेटली क्या बचा, पी ए. और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ, पी ए, मतलब ये करेक्ट है. ये मैंने चेक कर लिया, पहला करेक्ट हो गया. दूसरे पे चलते हैं, ये वाले एक्सप्रेशन पे. दिस इज लाइक पी ए बाय बी, अभी हमने सॉल्व किया है. दिस विल बी पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी. तो ये क्या आ जाएगा, पी ए इंटू पी बी डिवाइडेड बाय पी बी.
तो ये कायदे से पी ए आना चाहिए था, इन्होंने लिखा हुआ है ए बाय बी विच इज रॉन्ग। ये तो गलत हो गया एक्सप्रेशन। अगले पे चलते हैं एक्सप्रेशन पे, ठीक है, थर्ड पे। वो सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई ऐसा टफ नहीं है। थर्ड को देखोगे तो क्या आएगा, पी बी बाय ए है, तो इट विल बी पी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय पी ए। इसका मीनिंग ये होता है दैट इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए डिवाइडेड बाय पी ए। दैट मीन्स पी बी के इक्वल आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, तो सी भी करेक्ट हो गया। चौथे ऑप्शन को जब आप देखोगे इनइक्वालिटी के, तो कायदे से क्या आना चाहिए, कायदे से आना चाहिए पी बी, है ना। इसको अगर मैं सॉल्व करूं पी बी बाय ए, ये क्या हो जाएगा, पी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय पी ए। This comes out to probability of B into probability of A divided by PA। कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो P भी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ लिखा हुआ P बाय A, ये भी गलत, ये भी गलत, सिर्फ A और C करेक्ट है। वो पहला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ ये एक्सप्रेशन ठीक है और ये एक्सप्रेशन ठीक है कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए एंड पी बी इंटरसेक्शन इज पी बी। ए एंड सी इज करेक्ट, ए एंड सी एक ही ऑप्शन में है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट। ये सब 11th-12th के क्वेश्चन हैं प्रोबेबिलिटी के जो पूछते हैं। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन बीनीथ। अगर आप देखेंगे तो आपको सारा एक्सप्लेनेशन नीचे मिलेगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आता है ना। तो ये मैम ने आपको पढ़ाया भी था स्टैटिस्टिक्स में। क्लियर है सबको? जल्दी से, एनीवन हैविंग एनी डाउट? चलिए जी, आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन तो बुक का है, अभी मैं सॉइल पढ़ा रहा हूँ, सॉइल के अंदर ही इसमें से सारे नाम लिखे हुए हैं। सॉइल के अंदर ही सारे नाम लिखे हुए हैं, दो नाम इसमें से रॉक से लिए हुए हैं। तो ये तो मेरे लिए सिंपल क्वेश्चन बन गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो बहुत ही सिंपल है, ये 10th लेवल का क्वेश्चन है। 10th में पढ़ाई जाती है चीजें आजकल। लेफ्ट पे सब्सटेंस लिखे हुए हैं, राइट पे केमिकल कंपाउंड लिखा। सबसे आसान बताऊं मैं हिंट क्या था इसमें, द इजिएस्ट ऑफ द हिंट इन दिस क्वेश्चन वाज लाइमस्टोन। ठीक है, easiest of the hint was limestone. The limestone is nothing but calcium carbonate, A1. Then you will neglect some of the options which have no appropriacy here, right? This is gone. जैसे ही आप 100% श्योर हुए, this is gone. And the second hint here is, right, quicklime, which is calcium oxide. We will do that in soil. अभी आएगा कि quicklime क्या होता है, right? That is calcium oxide. Then slake lime भी आएगा soil के अंदर, C, which is basically calcium hydroxide, right? And then lime water भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप चूने का पानी कहते हो, लाइम वाटर, राइट। D is basically aqueous solution of calcium hydroxide। तो इसको हम देख भी सकते थे कि क्या क्या चीजें होती है। लेट्स हैव वन बाय वन इंटरेक्शन ऑफ दीज। सबसे इजी तो कैल्शियम कार्बोनेट था गाइस, जो फर्स्ट में आपने अगर किसी ने छोड़ दिया तो फर्स्ट वन लाइमस्टोन विच इज कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, ए गोज विद वन। क्विक लाइम बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड CaO। थर्ड स्लेक लाइम which is calcium hydroxide, right? Slake lime is calcium hydroxide. And D, lime water, which is the aqueous solution of calcium hydroxide in water. So the question was very simple, right? इसमें कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, इनफैक्ट इट वाज लाइक अ 11th-12th level question, I would say, not much. And all of these terms are written in their booklet in soil, and one limestone that is written in your mineral and rock. So easily it could have been caught, and the correct answer is 2. So some questions are really very simple, which you should ideally correct. The correct answer for 122 is 2. Clear है सबको? जल्दी बताओ भाई. Is this thing clear to each and every one? For 122 it is 2. Let's come to question number 123.
which is also a question from statistics, right? Which is also the question from statistics, right? So all of you are aware that this variance ratio test, which you say F test, right? Variance ratio test, which is basically called F test, right? Then you can say question number 123. F distribution is used in the hypothesis testing in which of the following situations? So all of you are aware that like F ratio test is variance ratio test also. F test is variance ratio test also. Large variance, right, of all small variance, right. This we have studied. But let's have a look at like how they will understand. ये तो मुझे पता है कि पहला तो correct होगा, influence about two population, because we call as variance ratio test. So, but then it will be a tie, whether it is A, B or A, D, right? So let's have a look option wise. So what we infers with the about the two population variance? Yes, that is exactly what it do. So it infers the two population variance. So F test specially designed to test the equality of the two population variance, and this is a direct application of F distribution, and the test status is calculated as the ratio of the sample variance to that of population, right? ये तो आपको पता ही है ना? Sample to that of population. Then the second one, it says comparing more than two population mean. Yes, yes. So this is the primary application analysis of variance. You know that ANOVA, which basically F distribution को use करता है, a statistically significant difference between the mean of the two or more than two population. F statistic ANOVA compare the variance between the group and within the group, right? Between the groups and within the group, right? SSC and SSA, right? Then you have testing of significance of correlation, right? That is basically the work of T distribution, not the F test. So testing the significance of correlation, coefficient, Pearson's coefficient, T distribution, not F distribution. So this we should know that, and T square is equal to F for single degree of freedom, right? So that's why T test is better approach here. And then we have the inference about a population mean, that is basically Z or T. So inference about the population mean, inference about the single population mean, confidence interval performing hypothesis testing are typically used of Z distribution. If the population size is more than 30 and if it less than 30, which is T. ये ध्यान रखना है आपको, है ना? तो यहाँ पे तो F का कोई चर्चा ही नहीं है, तो only 1 and 2 is correct. So the correct answer here will be first, A and B. When it comes to F ratio, then it is A and B only. Is that clear to each and everyone? Quickly respond करेंगे quickly guys. Anyone having any doubt? जल्दी से. All the people who are in the class. Clear है? चली गई. तो एज अ रिपीटेड क्वेश्चन, पहले भी एफ टेस्ट पे काफी क्वेश्चन आए हैं. Let's go to the next question, which is question number 124. This question is also directly from your booklet 3, right? Where it is written and directly taken from Alisa's dynamics class, right? If the wind face your back, right, in the northern hemisphere, then low pressure on your left hand side and high pressure on your right hand side. तो राइट टू लेफ्ट मूव करेगा तो कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, राइट, है ना? तो हाई प्रेशर लेकिन अगर रहेगा तो राइट हैंड साइड पे रहेगा, तो राइट हैंड साइड पे हाई प्रेशर रहेगा. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना?
वेबालेट्स लॉ का भी इसमें एप्लीकेशन आता है। तो लेट्स हैव अ लुक कि एक्चुअली में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 124 वेयर ही हैज टॉट अबाउट कोरियोलिस फोर्स, वहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली लिया गया उनकी क्लास से, आप देख भी सकते हैं क्लास में पढ़ाया गया है ये। So in the northern hemisphere, the gradient wind around a high pressure is characterized by. So let's talk first about what all terms are there, right? So as we can see here that in the northern hemisphere, the gradient wind around a high pressure is characterized by. So what do you mean by gradient wind, right? So when we teach you this Coriolis force, we tell you that in a theoretical wind that flow parallel to the curved isobar lines of constant pressure, right? हाँ वो तो होता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इट अकर्स ड्यू टू द बैलेंस बिटवीन, अब वहां पे बैलेंस कैसे हो रहा होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होती है, कोरियोलिस फोर्स होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, आपने पढ़ाई है, ठीक है। ये तीन फोर्सेस होती है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स व्हिच फ्लो व्हिच फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, कोरियोलिस फोर्स ड्यू टू अर्थ रोटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू द कर्व्ड पाथ। देन बिहेवियर इफ वी टॉक अबाउट, so high pressure system anticyclone, you know that in the northern hemisphere, Coriolis force deflects the moving air to the right around the high pressure and air diverge outward. So the flow become clockwise and slightly outward. उसको आप बोलते हैं सुपर जियोस्ट्रॉपिक, राइट। तो ये कंडीशन आपको वहां पे दिख रही है, राइट, क्योंकि ऊपर उसने मेंशन कर दिया क्वेश्चन में कि हाई प्रेशर, सो हाई प्रेशर सिस्टम विच इज बेसिकली एन एंटी साइक्लोन, राइट। सो फ्लो become clockwise and slightly outward. The condition is called super geostropic, right? Super geostropic. So the first answer is the appropriate one, super geostropic and clockwise flow, right? Because high pressure is mentioned in the question. High pressure center gradient wind the faster than the geostropic wind, hence super geostropic. अगर जियोस्ट्रोपिक विंड से कम होता तो सब जियोस्ट्रोपिक हो जाता है। तो क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सुपर जियोस्ट्रोपिक, राइट। सब जियोस्ट्रोपिक एंड क्लॉकवाइज, दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज हाई प्रेशर में नहीं होगा, राइट, है ना। तो इट इज अ फीचर ऑफ लो प्रेशर। If you say subgeostropic and clockwise, subgeostropic means wind is slower than the geostropic wind which occurs around the low pressure, so not high pressure. That is the mistake in the second option. If you go with third option, they say super geostropic and anticyclonic anticlockwise flow. That is also incorrect because in high pressure you have super geostropic, northern hemisphere high pressure and clockwise, not anticlockwise. It should have been clockwise, right? Then fourth one which say that subgeostropic and anti-clockwise flow, that is also incorrect. लो प्रेशर के लिए होता है सब जियोस्ट्रॉपिक, ध्यान रखना है। हाई के लिए हमेशा सुपर जियोस्ट्रॉपिक, क्योंकि वो जियोस्ट्रॉपिक विंड से ज्यादा होगा, राइट। एंड एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कॉरेस्पॉन्ड टू द लो प्रेशर इन अदर हेमिस्फीयर, नॉट द हाई प्रेशर, राइट। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी थी कि अगर लो प्रेशर होगा नदर हेमिस्फीयर में तो एंटी क्लॉकवाइज, हाई प्रेशर होगा तो क्लॉकवाइज, राइट। प्रेशर हाई है तो सुपर जियोस्ट्रॉपिक, राइट। प्रेशर लो है तो सब जियोस्ट्रॉपिक। नदर हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, है ना, एंड लो प्रेशर में नदर हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। तो ये थोड़ा सा माइंड में चीजें आपको रखनी है, उन्होंने पढ़ाया है सर ने अपनी क्लास में, अगर आप चेक करेंगे तो इट इज देयर। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वो डायनेमिक्स का जो लेक्चर है वो आपको करके जाने हैं इन एनी केस, राइट। वो जरूरी है करने, मैंने इसलिए ग्रुप पे भी लिखा है। तो द क्वेश्चन फॉर 124, नदर हेमिस्फीयर में हम ग्रेडियंट विंड अराउंड अ हाई प्रेशर, हाई प्रेशर सुपर जियोस्ट्रॉपिक हो गया, सब वाले तो ऑप्शन ही हटा दो, तो सब वाले ऑप्शन ही हट गए। तो सुपर जियोस्ट्रॉपिक है और नदर्न हेमिस्फीयर में है तो क्लॉकवाइज होगा, राइट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज फर्स्ट, करेक्ट आंसर हियर इज फर्स्ट। क्लियर है सबको, ये बात समझ में आ रही है सबको, जल्दी से। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 124, क्विकली गाइस।
इज दैट क्लियर? एनीवन, एनी डाउट? चलिए जी, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's talk about question number 125, which is a very simple question. During the COVID, this was the center of discussion. Like if a lot of people will be exposed to COVID, then automatically we will develop a herd immunity. ये question वहीं से आया है, right? कि herd immunity develop हो जाएगी automatically. ठीक है, अगर बहुत सारे लोगों को COVID हो जाएगा तो herd immunity develop हो सकती है, ऐसा कहा गया है ना. So that was there. So let's have a look. वैसे तो demography से है question. Resistance of a population to a pathogen as a result of immunity of large portion of population is known as. जो मैंने बोला ना, बहुत सारे लोगों को कोविड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो इम्यूनिटी है वो उसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं. अभी हम देख लेते हैं जितने भी यहाँ पे टर्म दिए हुए हैं, ये इनका क्या मीनिंग है. इनेट है, एक्वायर्ड है, एडेप्टिव है, मॉर्बिडिटी है. ये सब 11th-12th में आपको एक इम्यूनोलॉजी का चैप्टर होता है ना, उसमें मेंशन होता है. बट अब पता नहीं कितने लोगों को वहां से 11th-12th से याद है. कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे, जैसे इनेट इम्यूनिटी है. तो इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आपका. ठीक है, जो आपकी बॉडी के अंदर है ही है. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट एक्चुअली द इनेट इम्यूनिटी इज. इनेट और एक्वायर्ड दो तरह की होती है बाय बर्थ. So this is non-specific first line of defense mechanism of the body and it is present from the birth and provide immediate protection against the pathogen. तो बच्चा अपने साथ लेके जन्मता है, right? It does not involve memory and is not acquired through exposure or vaccination. जरूरत नहीं है. Example include skin barrier जैसे है mucosal membrane, phagocytic cells, right? स्किन में जैसे आपके क्या है कि सीबम सेक्रेट होता है, पीएच थोड़ी सी एसिडिक की तरफ जाती है. म्यूकोसल मेम्ब्रेन जैसे आप दी हुई है आपकी. ठीक है, तो वो सब इसके एग्जाम्पल है ना. सो दिस रेफर्स टू इंडिविजुअल्स इम्यूनिटी नॉट अ पॉपुलेशन कलेक्टिव रेजिस्टेंस टू अ लार्ज इम्यून पोर्शन. तो इंडिविजुअल लेवल पे है तो इनेट तो नहीं हो सकता. देन कम्स एडेप्टिव इम्यूनिटी, जो है जिसको हम एक्वायर्ड भी कहते हैं. ठीक है ना. तो एडेप्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी एक एस्पेक्ट है. एंड दिस इज अ स्पेसिफिक टाइप इम्यूनिटी दैट डेवलप ओवर द टाइम आफ्टर एक्सपोजर टू पैथोजन थ्रू वैक्सीनेशन. जो टीके लगते हैं आपको बचपन में. ठीक है, कि टिटनेस का लग रहा है, टाइफॉइड का लग रहा है. ठीक है, बीसीजी का लग रहा है ना, द हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, इस तरह से. तो इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल्स and the remember specific pathogen. This refers to individual specific immunity, not population level phenomena. ये तो इंडिविजुअल के लेवल पे है, पॉपुलेशन पे तो नहीं है. मॉर्बिडिटी आपको पता है कि अगर डिजीज या अनहेल्थी हो विद इन द पॉपुलेशन उसको कहते हैं मॉर्बिडिटी. ठीक है, मोर्टेलिटी और डेथ को कहते हैं, लेकिन मॉर्बिडिटी क्या है? कंडीशन ऑफ डिजीज. मॉर्बिडिटी आपको पता है that it refers to the state of being disease or unhealthy within a population, right? And it encompasses any departure, subjective or objective, from a state of physiological or physiologically well-being. It is not about death, mortality नहीं है, but about living with a disease or health condition. मान लीजिए किसी को शुगर हो गया या फिर किसी को कोई किडनी की डिजीज हो गई तो मॉर्बिडिटी है. ठीक है. देन लास्ट में आपका आता है हर्ड इम्यूनिटी. ठीक है जी. हर्ड इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि जैसे कोविड में लोगों की थिंकिंग थी, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम एन इन्फेक्शन डिजीज दैट अकर व्हेन अ लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैज बिकम इम्यून टू एन इन्फेक्शन, whether through vaccination or previous infection. This makes the spread of infection disease from one person to another unlikely and this provide protection to those who are not immune. तो या तो वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यून हो जाए लोग, या फिर इतना इन्फेक्शन फैल गया हो कि उनमें पूरी पॉपुलेशन के अंदर एक अलग लेवल की इम्यूनिटी आ जाए उस पैथोजन के अगेंस्ट, दैट इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी. जैसे कोविड में हुआ था. ठीक है, तो द करेक्ट आंसर हियर इज हर्ड इम्यूनिटी, राइट. हर्ड इम्यूनिटी इज द करेक्ट आंसर. बेसिकली दैट इज द रेजिस्टेंट ऑफ पॉपुलेशन टू पैथोजन एज अ रिजल्ट ऑफ इम्यूनिटी ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन. इतने लोगों को हो चुका है या इतने लोगों को वैक्सीन लगा दी कि अब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन विल बी इम्यून टू दैट, दैट इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी. झुंड जिसको कहते हैं ना. क्लियर है सबको ये 125? किसी को कोई डाउट है जल्दी बताइएगा इस. किसी को कोई डाउट है 125 में? जल्दी से क्विकली. एनीवन हैविंग एनी डाउट इन 125? चलिए आगे चलते हैं.
लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 126। 126 देखिए, लेफ्ट हैंड वाली टर्म तो सारी आपकी बुकलेट में दी हुई है, ठीक है, कि हिस्टोसोल क्या है, वर्टिसोल क्या है, एंडीसोल क्या है, स्पोडोसोल क्या है। ये सॉइल में जो शीट हमने लगाई हुई है आपकी बुकलेट के अंदर, राइट, है ना। मैंने उस दिन भी बताया था जब मैं सॉइल पढ़ा रहा था, ये आपकी बुकलेट के अंदर ये शीट दी हुई है, बड़े काम की है, ऑन पेज नंबर 53, है ना। जैसे पहली टर्म दी हिस्टोसोल क्या है, तो हिस्टोसोल पता है आपको, ऑर्गेनिक सॉइल होती है, बॉगी सॉइल होती है ना। वहां से आपको ये आइडिया लग गया कि भाई जो हिस्टोसोल होती है वो ऑर्गेनिक सॉइल होती है, बॉगी सॉइल होती है। ये तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक सॉइल या बॉग सॉइल को हम हिस्टोसोल कहते हैं, ठीक है। ये हिस्टोसोल हो गया। फिर आपको दिया वर्टिसोल, वहां पे आपको वर्टिसोल के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसको ग्लूमोसोल भी कहते हैं, रैगुर भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ठीक है, ब्लैक अर्थ भी कहते हैं। तो ये ग्लूमोसोल या रैगुर सॉइल होती है, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं वर्टिसोल को, ठीक है, रैगुर, ठीक है। अब इसका एक फीचर आपको बताया था कि इसके अंदर जो है सोडियम परसेंटेज अच्छा खासा होता है, ठीक है, जब मैं रैगुर सॉइल पढ़ा रहा था, किसी ने मुझसे पूछा भी था, है ना। रेगुलर ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, विच इज गुड फॉर द एग्रीकल्चर पार्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया, ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको कहते हैं, ये मैंने बताया भी था उस दिन आपको, ठीक है। उसके बाद अगली टर्म आती है एंडीजोल, ठीक है जी। तो एंडीजोल ये पहले भी आया हुआ है ना, ठीक है। तो एंडीजोल जो हमने पढ़ा, तो एंडीजोल बेसिकली वॉल्केनिक ऐश होती है एक तरह की, ये वॉल्केनिक इजेक्टा होता है, ठीक है। एंडीसोल की अगर मैं बात करूं तो वोल्केनिक ऐश और वोल्केनिक इजेक्टा से बनती है। यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि वोल्केनिक ऐश या वोल्केनिक इजेक्टा है ये। फिर लास्ट में एक दिया हुआ है स्पोडोसोल। स्पोडोसोल बेसिकली पोडोसोल को ही कहते हैं, इसको ब्राउन पोडोसोलिक सॉइल भी कहते हैं या ग्राउंड वाटर पोडोसोल भी कहते हैं। तो ब्राउन पोडोसोलिक सॉइल ये हुई एक तरह से, है ना। इसी को आप जो आपका स्पोडोसोल है, ठीक है जी, इसी का नाम पोडोसोल भी होता है, पोडोसोल्स, ठीक है, या ब्राउन पोडोसोलिक सॉइल भी कहते हैं इसको, ब्राउन पोडोसोलिक सॉइल। अब देखो, यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में कि अगर किसी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक या बॉग लाइक सिचुएशन है, तो भाई उसमें बहुत ज्यादा कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो पानी से भरा हुआ है। एक सबसे अच्छा हिंट मुझे यही लगा बस इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसके अलावा मुझे कोई इसमें हिंट जो अच्छा नहीं लगा। सबसे अच्छा हिंट मुझे यही लगा कि जो हिस्टोसोल है वो आइडियली सबसे कम होना चाहिए। सबसे कम वैल्यू राइट हैंड साइड पे एक ही दी हुई है, 2 to 57 रेंज ऑफ कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। सी क्या होता है अभी आएगा आपका सॉइल में, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक है। ये सी आपका, ये कितने आयंस पर मोल। तो फर्स्ट में जो फोर्थ, राइट, नहीं इसकी सबसे ज्यादा होती है शायद, सॉरी। हम्म, ठीक है, जो स्पोडोसेलिक सॉइल होती है उसकी सबसे कम होती है ना। तो इसमें क्या है कि जो हिस्टोसोल होगा वो सबसे ज्यादा पजेस करेगा आपकी कैटायन एक्सचेंज, क्योंकि ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप उसमें बहुत ज्यादा है। और वही एक्चुअली एक कंडीशन जो सॉइल की है उसको मैच कर रहा है कि ऑर्गेनिक कंटेंट अच्छा खासा हो मेरे पास, ठीक है। तो उसके पास ऑर्गेनिक कंटेंट अच्छा खासा है ना। तो ये बात आपको माइंड में रखनी थी। बट बाकी हमने इसको अच्छे से एकदम अरेंज किया है, और ये डाटा थोड़ा सा नया है कि स्पेसिफिक टाइप के नाम भी दे दिए और स्पेसिफिक टाइप की आपसे ईसी पूछी, ठीक है। पहले खाली सिर्फ ईसी पूछा जाता था, स्पेसिफिक नाम नहीं पूछा जाता। तो ये डबल क्वेश्चन हो गया एक तरह से, कि पहले आप क्रॉस नेम डेसिफर करो, उसके बाद आप ईसी देखो, ठीक है ना।
तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ रेंजेस जो आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी इनके बारे में, कि भाई इनका इसी रेंज आपको आइडिया होना चाहिए। तो फर्स्ट वी विल सी द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, व्हाट एक्चुअली इट इज। cation exchange capacity, it is basically the capacity of the soil, that how much cation it can exchange. So it's a measure of the soil ability to hold and exchange the positively charged cations. It is important indicator of soil fertility and its capacity to retain nutrient. CEC is primarily determined by the amount of type of clay mineral and organic material in the soil. तो जितने ज्यादा क्ले मिनरल होंगे, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, उतना ही अच्छा आपका सीईसी होगा, ये माइंड में रख लो, राइट। सीईसी का प्राइमरी क्राइटेरिया क्या है? more the clay mineral, more is the CEC, more is the organic matter, more is the CEC। इसीलिए बॉग और ऑर्गेनिक मैटर वाली जो सॉइल है उनको मैक्सिमम यहाँ पे मिला, उसका रीजन यही था, ठीक है कि भाई उनको क्यों मिला, उसका रीजन आपको मैंने बताया कि क्यों मिला उनको। नाउ लेट्स सी वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोसोल की। तो हिस्टोसोल आर द ऑर्गेनिक सॉइल, मीनिंग दे आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन वेरियस स्टेट ऑफ डिकम्पोजिशन। ऑर्गेनिक मैटर हैव अ वेरी हाई ईसी। तो भैया ये तो बहुत हाई होगा इसका तो ईसी, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, तो क्ले मिनरल ज्यादा हो या ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो। तो इनका होता है करीबन 110 से लेके 170 के आसपास, राइट। तो वेरी हाई कैटेगरी में ये आते हैं। उसके बाद वी हैव द वर्टिसोल्स विद अस, राइट। वर्टिसोल्स की बात करें तो वर्टिसोल्स का जो रेंज है, वर्टिसोल्स आर द क्ले रिच सॉइल। इनमें भी क्ले अच्छा खासा होता है, कैरेक्टराइज बाय हाई कंटेंट ऑफ श्रिंक वेल क्लेज लाइक सिमेक्टाइट, एंड दे आल्सो आर इन द हाई रेंज। तो इसके बाद एक ऑप्शन आता है 33 to 67, राइट। सो दे हैव जनरली हाई। तो वर्टिसोल और हिस्टोसोल्स तो हाई में चलेगा इसी कंटेंट में। देन वी हैव टू अदर ऑप्शंस व्हिच इज एंडीजोल एंड स्पोडोसोल, राइट। तो एंडीसोल आपने बताया कि एंडीज माउंटेन से भी इसको हम याद रख लेते हैं, एंडीसोल्स हो गया आपका। तो आर द सॉइल फ्रॉम द वोल्केनिक एश एंड ग्लास रिच अमोर्फस मिनरल लाइक एलोफेन और इमोगोलाइट। वोल्केनिक रीजन जैसे जापान, पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट, ये सब है। सिल्टी टू फाइन होता है, ऑफन डार्क ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर, डोमिनेटेड बाय शॉर्ट रेंज ऑर्डर मिनरल, हाई वाटर रिटेंशन, मॉडरेट टू हाई न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। तो 13 to 49 इसकी रेंज रहती है, टिपिकल रेंज एंडीसोल की, ये फिक्स है, राइट। तो दिस इज अ रेंज टू मॉडरेट टू हाई। ऑर्गेनिक कंटेंट, हाइयर ऑर्गेनिक मैटर, हाइयर ईसी, पीएच इंक्रीज, नेगेटिव चार्ज एंड हेंस ईसी। तो अगर कहीं पीएच बढ़ता है तो भी बढ़ेगा, एंड प्रेजेंस ऑफ अमोर्फस मिनरल। तो इसका जो रेंज है वो 13 to 49 के आसपास है, विच इज ऑन थर्ड नंबर। एंड फोर्थ विल गो टू स्पोडोसोल। ये आपको याद रखनी है वैल्यूज, क्योंकि दोबारा भी क्वेश्चन आ सकता है किसकी किस रेंज में है, राइट। तो स्पोडोसोल इज बेसिकली acidic soil common in coniferous forest, and they are characterized by the subsurface accumulation of organic matter, iron, aluminum. The upper horizon are typically sandy and leach, resulting in a very low organic matter and clay content। बहुत ही कम होता है। तो सबसे कम स्पोडोसोल में होता है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर और क्ले का कंटेंट कम है। तो 2 to 57 वेरी लो, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, और इसीलिए मैंने नीचे एक टेबल आपको दिया है बना के, यू शुड डायरेक्टली रिमेंबर, ठीक है ना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसको याद रखने का एक और आसान तरीका है जो हमने कुछ जगहों पे बताया व्हेन वी वर देयर। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, HIV एड्स। तो आपको ये याद रहेगा, H मीन्स हिस्टोसोल, V मीन्स वर्टिसोल, A मीन्स एंडीसोल्स, राइट। एंड लास्ट में आपका स्पोडो, D स्पोडोसोल। और नंबर्स को आप घटाते चलिए, 100 to 170 पहले में, then 33 to 67, then 13 to 49 and 5 to 27। ये रेंज आपको याद करने में हेल्प हो जाएगी बहुत ज्यादा। सिंपल लॉजिक यही है, हाई ऑर्गेनिक मैटर हाई सिलिका कंटेंट मींस हाई ईसीई। हिस्टोसोल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस, हाई ईसीई 100 to 170। ऑप्शन में आपको भी है। वर्टिसोल्स क्ले रिच मोनोट्रिलोनाइट, हाई बट लोअर देन हिस्टोसोल। देन द थर्ड ऑप्शन which is given there is एंडीसोल volcanic ash moderate high 13 to 49। and last option but not the least स्पोडोसोल सैंडी एसिडिक लो ईसी 5 to 27। ये दोबारा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है गाइस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत डेप्थ का क्वेश्चन है।
क्लियर है ये सबको? जल्दी बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 126 क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे, जल्दी बताइए भाई। इसकी वैल्यू जरूर याद रखना है, ये मेरा दिल कहता है ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। इट हैज डेप्थ, डेप्थ है इस क्वेश्चन में विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, डाटा हमने लगाया हुआ है बेटा सिलेक्टेड सॉल्यूशन में। डाटा लगा हुआ है पिछली बार के सिलेक्टेड सॉल्यूशन में, पूरी की पूरी टेबल है। ठीक है, उसको सारे को यहाँ एक्यूमुलेट करना इज नॉट अप्रोप्रिएट। पूरी की पूरी टेबल है, ठीक है, आपको दिख जाएगी इसी की टेबल। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन 127। भैया ये तो आपने आंख बंद करके ठीक कर देना था, क्योंकि आपकी बुकलेट में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, कि प्राइमरी में कौन कौन है। और अगर मैं प्राइमरी पे भी ना जाऊं, मैंने आपको वहां लिखवाया हुआ है, और उस पेज पे लिखा भी हुआ है ये बात, कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट आर ट्रिकलिंग फिल्टर, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, राइट, है ना? ये लिखा हुआ है वो, कि सेकेंडरी में ट्रिकलिंग फिल्टर, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, ये सब आते हैं। ठीक है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो इसमें बाकी के ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, बार स्क्रीन ये प्राइमरी में है, ग्रिड चैम्बर प्राइमरी में है, प्राइमरी क्लियरफायर भी प्राइमरी में है। तो ये जो बार स्क्रीन है, आपके ग्रिड चैम्बर है, प्राइमरी क्लेरिफायर है, ऑल थ्री ऑफ देम आर प्राइमरी। ये पता है, ये तीनों प्राइमरी है। ठीक है, एक ही है जो यहाँ पे सेकेंडरी है, विच इज ट्रिकलिंग फिल्टर, या मैंने आपको बताया भी था रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो ट्रिकलिंग फिल्टर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिर भी वी विल सी द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये तो बुकलेट से ही डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा, कि ट्रिकलिंग फिल्टर इज द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट। सिंपल क्वेश्चन था ये, ट्रिकलिंग फिल्टर, क्योंकि ये सेकेंडरी में, इसने पूछा ना नॉट बिलोंग टू प्राइमरी वेस्ट वाटर, तो ट्रिकलिंग फिल्टर, बिकॉज ट्रिकलिंग फिल्टर इज अ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ट्रिकलिंग फिल्टर जो है वो सेकेंडरी में आता है, ये आपको पता है ना? बुकलेट में लिखवाया हुआ है कि ट्रिकलिंग फिल्टर है, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर है ना? देखिए अब इसको जरा, इनके तो एनिमेशन भी मैंने आपको दिखाए थे व्हेन वी वर डूइंग दिस। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, पहला बार स्क्रीन जो है, तो प्राइमरी का आपको पता है ये काम क्या होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, कि प्राइमरी का काम हमें पता है क्या होता है। तो प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रिमूव लार्ज सॉलिड पार्टिकल, सस्पेंडेड मैटर्स, स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, स्कीमिंग, और डज नॉट इन्वॉल्व बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, वो सेकेंडरी में आता है। तो बार स्क्रीन जो है आपकी पार्ट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट, used to begin the wastewater treatment, remove large debris such as sticks, leaves, plastic bags, prevent the clogging. Primary है grit chamber, primary, right? Grit chamber is removed for sand, gravel, and heavy particle from wastewater, reduce the wear and tear, right? And it is usually located after bar screen. Trickling filter आपको पता है कि सेकेंडरी है, और यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज होती है, तो ट्रिकलिंग फिल्टर आपकी सेकेंडरी है जी, नॉट प्राइमरी, इट इज सेकेंडरी। सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, ये आपको पता ही है। और वेस्ट वाटर को हम स्प्रे करते हैं, स्टोन और प्लास्टिक का बेड होता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो इन द फॉर्म ऑफ बायोफिल्म, एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी ट्रिकलिंग फिल्टर। तो ट्रिकलिंग फिल्टर प्राइमरी में नहीं आता है, टू बी वेरी फ्रैंक। प्राइमरी क्लियरफायर तो आपको प्राइमरी में है ही, मैंने बताया था कि जब कोगुलेंट यूज करते हैं, फ्लोकुलेंट यूज करते हैं, है ना? प्राइमरी क्लियरफायर सेडिमेंटेशन टैंक एंड सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन, ऑयल एंड ग्रीस आर स्किम्ड ऑफ एंड रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो ये इजी और अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप ऐसे भी डायरेक्टली भी कर सकते थे, क्योंकि हमने तो ये पढ़ाया हुआ है कि ट्रिकलिंग फिल्टर, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, है ना, ये सब जो है आपके, जो है सेकेंडरी में आते हैं। तो 127 द करेक्ट आंसर इज ट्रिकलिंग फिल्टर, कि नॉट पूछा है। ट्रिकलिंग फिल्टर इज सेकेंडरी, तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। 127 सबको क्लियर है? जल्दी बताइए, क्विकली गाइस, क्विकली, फास्ट फास्ट एकदम। 127 क्लियर है? बहुत आराम आराम से हम चल रहे हैं डिस्कशन में, अवर ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड। हमें आपको लिटरेचर अच्छे से डाइजेस्ट करना है इसका। ठीक है, कि जो भी नया मैटर है 2025 जनवरी का, वो आपके माइंड में रहे, कि किन सिनेरियोज को टीचर जो है आजकल थोड़ा टच किए हुए हैं। ठीक है, तो कम से कम 10-15 तो आपको यहीं से डायरेक्ट दिखेंगे ऐसे ही। ठीक है, कॉन्सेप्ट हो,
मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन एग्जैक्टली ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीटिशन बहुत है। तो कॉन्सेप्ट रिपीटिशन है तो फिर जब आप सारा ही कवरेज करके जा रहे हैं 25 से लेके 12 तक का, सबका सिलेक्टेड सोल्यूशन आपके पास है, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी थोड़ी जीएस वीएस पढ़ते हैं, जिनको आइडिया है, वैसे तो ये जीएस लेवल का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी ये पता होना चाहिए सबको, ठीक है। कहता है कि विच ऑफ द प्लैनेट, अब एक बात तो पक्की है कि अर्थ के ऊपर तो नहीं है सबसे ज्यादा CO2 फॉर श्योर, राइट। 0.04% कैन नॉट बी मैक्सिमम, तो एक ऑप्शन तो रूल आउट हो गया आपका, ठीक है। पर फिर भी मैं इसको सारा एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा लॉजिक क्यों हमने चूज किया। सो क्वेश्चन नंबर 128 से विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैव मैक्सिमम CO2 कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम इन इट्स एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। तो पहली बात तो बात यह है कि उस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, और तब तो हम CO2 की बात करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बारे में जरूर डिस्कस हम करेंगे। तो ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते हैं। पहले सबसे पहला ऑप्शन दिया इन्होंने अर्थ। तो अर्थ पे तो आप रहते ही हो, आपको पता है कि भाई 0.04% या 3% के आसपास है। तो अर्थ CO2 कंसेंट्रेशन is 0.04%, which is 400 ppm, and Earth atmosphere is primarily composed of nitrogen and oxygen। ये तो अर्थ के बारे में आपको क्लियरिटी है, बिकॉज फ्रॉम चाइल्डहुड यू आर स्टडिंग दिस, राइट। आगे चलते हैं मरकरी, राइट। सो मरकरी की बात करते हैं आगे चल के। तो ऑलमोस्ट नो एटमॉस्फेयर। तो भैया जब एटमॉस्फेयर नहीं तो काहे की CO2, तो इसमें तो वैसे ही कांटा लग गया, राइट, है ना। तो ऑलमोस्ट नो एटमॉस्फेयर, इसके एटमॉस्फेयर को एक्सोस्फेयर कहते हैं। हैज ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, पोटेशियम, निग्लेजिबल CO2, तो काटा ही मार दो ज्यादा अच्छा है। दो ऑप्शन तो आपके हो गए। देन वी हैव वीनस एंड जुपिटर, ठीक है। देन वी हैव वीनस एंड जुपिटर। तो वीनस की बात कर लेते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वीनस, CO2 इज अराउंड 96.5%, आप इमेजिन करिए। और यहाँ पे नाइट्रोजन अराउंड 3.5% वीनस के एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो आप एक बात और नोटिस करेंगे कि वीनस हैज द थिकेस्ट CO2 रिच एटमॉस्फेयर अमंग ऑल द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे जबरदस्त थिकनेस है इसके पास। एंड दिस CO2 डोमिनेट एटमॉस्फेयर इज अ रीजन फॉर द एक्सट्रीम ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन वीनस, मेकिंग इट द हॉटेस्ट प्लैनेट। ये लॉजिक भी यहाँ पे है, क्योंकि इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज्यादा है, इसीलिए वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। एंड देन कम्स जुपिटर, ठीक है। जुपिटर पे तो भैया हाइड्रोजन का बोलबाला है, जुपिटर पे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यू कैन सी हियर दैट जुपिटर कंपोज मेनली ऑफ हाइड्रोजन 90% एंड हीलियम 10%, ये तो HH वाले हैं। कंटेन ओनली ट्रेस अमाउंट ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड अदर गैसेस, एंड CO2 इज नेग्लेजिबल, तो जुपिटर को भी काटा मार दो। टक्कर सिर्फ दोनों में ही थी, अर्थ में और वीनस में, और उसमें वीनस का मैटर जो है वो भारी है, 96.5% है, और इनका टेम्परेचर भी इसलिए इतना हॉट है। तो वीनस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डाटा से भी आपको पता चल गया है। और ये ध्यान रखिएगा, अगली बार हो सकता है जुपिटर पूछ ले, तो ये चीजें आपको डाइजेस्ट करनी है कि विच प्लैनेट डू नॉट हैव द एटमॉस्फेयर, मरकरी डू नॉट हैव द एटमॉस्फेयर। क्लियर है सबको? 128, किसी को कोई डाउट है इसमें? वाई वी टुक वीनस, और वीनस का हॉटेस्ट होने का भी रीजन है यही। क्वेश्चन नंबर 122 128 क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? जल्दी बताइए भाई। चलो जी हम आगे चलते हैं इसके बाद। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 129। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा, मैं ये कहूंगा कि बायोसेंसर जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी कभी कभी एक आउट ऑफ द सेंस क्वेश्चन का कोई दिक्कत नहीं है अगर आ भी जाता है। ये क्वेश्चन आपको मैटर नहीं डालेगा। एक्चुअली में बायोसेंसर बहुत ज्यादा पढ़ाए नहीं जाते, फ्यूल सेल जरूर पढ़ाया जाता है, विच कैन बी कोरिलेटेड विद दिस, बट बायोसेंसर का थोड़ा सा बोलबाला कम है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 129 says in which of the component of biosensor does a whole bacterial cell work?
तो ये कह रहा है कि अगर जो बायोसेंसर कहने का मतलब क्या है, दोज डिवाइसेस विच बेसिकली सेंस सर्टेन सब्सटेंसेस, राइट। तो इफ वी कंपेयर अ बायोसेंसर with a bacterial cell, then which part you think will work like that? मतलब क्वेश्चन का ये कहने का मतलब है। तो पहले हम डिटेलिंग कर लेते हैं इसकी, राइट, कि क्या क्या पार्ट है इसमें से। इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस है, ट्रांसड्यूसर है, रिकॉग्निशन लिमिट है, डिस्प्ले यूनिट है। डिस्प्ले यूनिट तो सबको पता होगी, जो स्क्रीन होती है जिसपे दिखता है, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स में आपको डिस्प्ले यूनिट लगी होती है ना, कि पीएम इतना है, ये इतना है, वो डिस्प्ले यूनिट होती है, राइट, है ना। तो वो थोड़ा सा एक आपको आइडिया हो गया डिस्प्ले यूनिट क्या होती है। तो a biosensor is a device that combine biological sensing element with a physical transducer to detect analytes such as toxin, metabolite और पैथोजन। किसी को भी आप डिटेक्ट कर सकते हो बायोसेंसर की हेल्प से, ठीक है। बायोसेंसर इस तरह की चीजें होती है। तो देर आर थ्री मेन कंपोनेंट बायोसेंसर के अंदर, टिपिकली कंपोज ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट। वन इज कॉल्ड बायो रिकॉग्निशन एलिमेंट, ठीक है। बायो रिकॉग्निशन एलिमेंट होता है, जिसको आप रिकॉग्निशन एलिमेंट भी कह देते हैं इन शॉर्ट। सो दिस इज द कंपोनेंट दैट इंटरैक्ट स्पेसिफिकली विद द एनालाइट। यही वो कंपोनेंट है जो, जिसको आपको टेस्ट करना है, उसके साथ इंटरैक्ट करेगा, द सब्सटेंस बीइंग डिटेक्टेड। एंड दिस इंटरैक्शन जनरेट अ सिग्नल। एग्जांपल इंक्लूड एंजाइम, एंटीबॉडीज, न्यूक्लिक एसिड या होल सेल, कुछ भी हो सकता है बायो रिकॉग्निशन एलिमेंट। इसके बाद एक आता है ट्रांसड्यूसर, कि आपने क्या पाया वहां, क्या पकड़ा, राइट। So this component convert the biochemical signal generated by the biorecognition element into a measurable electric or optical signal। वो उसको एक करंट में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, जिसको मशीन के पास भेजा जाएगा। देन वी डू हैव अ सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट और डिस्प्ले यूनिट, वो उसको डिस्प्ले करेगी। दिस पार्ट प्रोसेस ट्रांसड्यूसर सिग्नल एंड डिस्प्ले द रिजल्ट एज यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट। तो ये फाइनली आपको वो स्कोर दिखाएगा कि भाई क्या रीडिंग आई है, ठीक है। जैसे आप देखते हो ना कि जो स्ट्रिप आप ग्लूकोज या शुगर लेवल टेस्ट करने के लिए करते हो, है ना, तो आप उस स्ट्रिप के टिप पे हल्का सा ब्लड का ड्रॉप रखते हो, ठीक है। तो उसके अंदर पक्का पक्का कोई एंजाइम, कोई इस तरह की ट्रिक, कोई एंटीबॉडी या फिर कोई इस तरह का एंजाइम जरूर होता है, ठीक है, जो आपको डिटेक्ट करके बताए आफ्टर द रिएक्शन। तो वो नंबर में कन्वर्ट होता है ट्रांसड्यूसर के थ्रू, और फिर आपको दिखता है उस मशीन के ऊपर कि इतनी शुगर है, 120 है, 130 है, 150 है। तो सेम काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग हियर। नाउ लेट्स सी वन बाय वन द ऑप्शंस, कि क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। तो this is usually a part of signal processing transmission, converting the transducer's output into the usable electric signal for processing does not directly interact with the analyte। ये इलेक्ट्रिकल जो इंटरफेस होता है, ये तो कन्वर्ट करता है सिग्नल को ट्रांसड्यूसर से लेके, इसका कोई काम थोड़े है, ठीक है। ट्रांसड्यूसर एलिमेंट जो मैंने आपको अभी बताया, ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि वो उस रीडिंग को कॉम्प्रीहेंड करता है। दिस कन्वर्ट द बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन इवेंट इनटू अ मेजरेबल सिग्नल, कि सिग्नल बने, और फिर हम आगे उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके देखें। जैसे इलेक्ट्रिक करंट बने या लाइट या टेम्परेचर चेंज डज नॉट परफॉर्म द इनिशियल रिकॉग्निशन, वो इसका काम नहीं है। तो ट्रांसड्यूसर और इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस तो आउट हो गए। देन वी हैव द रिकॉग्निशन एलिमेंट विद अस। यही वो पार्ट है जो एक्चुअली में इंटरैक्ट करता है, ठीक है, जो बायोसेंसर की तरह, बैक्टीरियल सेल की तरह काम करता है। दिस इज वेयर द specific binding or reaction with the target analyte occur, and whole bacterial cell due to their specific metabolic activities or surface receptor can act as a recognition element, interacting with specific substance in their environment and produce a detectable change। तो यही वो काम करते हैं, रिकॉग्निशन एलिमेंट होते हैं जो बायोसेंसर की तरह काम करते हैं। डिस्प्ले यूनिट पे तो सिंपली आपको दिखेगा, जैसे मैंने बताया एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखता है, या आपकी फोन की जो डिस्प्ले यूनिट होती है उसमें दिखती है चीजें। तो दिस इज वेयर द फाइनल प्रोसेस सिग्नल इज प्रेजेंटेड टू द यूजर। डिजिटल डिजिटल रीड आउट होता है आपका ग्राफ, या आउटपुट होगा, तो कुछ नंबर्स होंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं होल बैक्टीरियल सेल की बात करूं, राइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि होल बैक्टीरियल सेल की अगर मुझे बात करनी है, तो व्हेन अ होल बैक्टीरियल सेल इज यूज्ड एज अ बायोसेंसर, its biological machinery, enzyme, receptor, metabolic pathways exploited to specifically recognize and react with the target analyte, and this makes the whole bacterial cell function as biorecognition element or recognition element। मेन काम तो वही करेगा ना, ठीक है। जैसे कोई बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया, जैसे एग्जांपल भी दिया, बैक्टीरियम माइट बी प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक मेटाबोलाइट इन रिस्पॉन्स टू अ पोल्यूटेंट। कोई स्पेसिफिक तरह का मेटाबोलाइट उसमें प्रोड्यूस हुआ, ठीक है।
जैसे मान लीजिए एक्सेस ऑफ SO2 में लाइकेन डेथ हो जाती है, ऐसे ही अगर एक्सेस ऑफ SO2 हो तो कोई मेटाबोलाइट प्रोड्यूस हो उस बैक्टीरिया के अंदर, कोई बैक्टीरिया ने बनाया SO2 डिटेक्ट करने के लिए, एंड दिस चेंज देन डिटेक्टेड बाय ट्रांसड्यूसर एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर इज रिकॉग्निशन एलिमेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो रिकॉग्निशन एलिमेंट है, क्योंकि वही बायोसेंसर की तरह वर्क करता है। बाकी तो सारे सिग्नल कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल प्रोसेसिंग और डिस्प्ले दिखाने के लिए, उनका काम नहीं है। सो द करेक्ट आंसर फॉर 129 वुड बी डेफिनेटली रिकॉग्निशन एलिमेंट। क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस मान के चलिए आप, है फॉर इन्वायरमेंटल साइंस पीपल, ठीक है, क्योंकि ये सारा काम जो है वो बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। मैं आपको बता दूं फ्रैंकली, जो लोग बायो सेंसर वगैरह डिजाइन करते हैं, ये काम इन्वायरमेंटल साइंस वालों का नहीं है। बट पूछ रहा है तो पूछ रहा है, उसमें आपको सीखना पड़ेगा। देयर इज नो रन अवे। क्लियर है क्या? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन 128? जल्दी बता दो भाई। क्लियर है? चलिए जी, आगे आ जाइए। सॉरी, 129 था ये, 8 नहीं था। अगला क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपकी बुकलेट का ही क्वेश्चन है। आप ये मान लीजिए जो सोलर डिवाइसेस आपको पढ़ाई गई है उन्हीं से है, और इजीली आप इसको हिंट कर सकते थे या जज कर सकते थे, मतलब कुछ इसमें बहुत बड़ा नहीं था गाइस। स्पेशल बात ये थी इस क्वेश्चन की कि डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन था ये। है तो सोलर एनर्जी से, ये तो मुझे पता चल गया कि सोलर एनर्जी से है, मैं उस बात को एग्री कर रहा हूँ। लेकिन क्या हम बिना बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़े हुए इसको जज कर सकते थे? यस, हम कर सकते थे। तो इन लिस्ट वन वी हैव सोलर अप्लायंसेस की जो जो डिवाइस सोलर एनर्जी से चलती है, और बी में लिखा हुआ यूज। तो ये बात तो सबको पता है कि ओवन या तो खाना गर्म करने के लिए यूज होता है या खाना बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। ओवन का कोई और दूसरा ऑपरेशन नहीं है। ओवन के दो ही फंक्शन है, या तो खाना बना लो या खाना गर्म कर लो, चाहे वो सोलर ओवन हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक सबसे इजी हिंट था इसमें, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक कॉमन सेंस और कॉमन आदमी के लिहाज से अगर मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करता, तो मेरा जो एरो है वो डायरेक्टली इट शुड हैव कम फ्रॉम सोलर ओवन टू कुकिंग। ओवन का यही फंक्शन है, या तो आप खाना बनाओगे या खाना गर्म करोगे। ओवन का मुझे और कोई फंक्शन तो दिखाई देता नहीं, ठीक है। वैसे तो है नहीं कि जी उसको आपने सजाने के लिए रख रखा है, तो ओवन का आप कहीं भी देख लो, दो ही फंक्शन है, या तो आप खाना बना लो उसमें या खाना गर्म कर लो, ठीक है। तो जैसे ही आपने ए को 4 से मिलाया, आपके भैया दो ऑप्शन तो यहाँ पे सिक्योर हो गए और दो कट गए, क्योंकि मैं 100% श्योर था कि या तो खाना बनाने में इस्तेमाल होगा या खाना गर्म करने में इस्तेमाल होगा। तो अब सिर्फ फाइट रह गई दो ऑप्शन में, ठीक है। इस पे भी आप देख रहे हो कि बी तो 3 पे जा रहा है, ठीक है ना। तो जैसे भट्टों में जब ईंट आपकी कच्ची होती है, जो ब्रिकलिन होते हैं, उसमें ईंट को पकाने का काम करते हैं, ठीक तो ना। पहले मिट्टी के कलर की होती है ईंट, जो भी वेस्टर्न यूपी वगैरह में, राजस्थान में, हरियाणा में थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां उनको ब्रिकलिन दिखाई देंगे बहुत सारे। और वो इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि वो कच्ची ईंट को पकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे ही सोलर क्लिन भी जो है, किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको ड्राई करना है, उसके लिए सोलर क्लिन आपके यूज होते हैं फॉर श्योर। तो सोलर क्लिन विल गो टू 3। ये ड्राइंग प्रोडक्ट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद सोलर स्टिल। सोलर स्टिल बेसिकली डीसैलिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और सॉल्टेड वाटर को ये फ्रेश पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये इसका एक एप्लीकेशन है, और आप जब देखेंगे, अभी मैं डाटा दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि सोलर स्टिल इज बेसिकली यूज फॉर प्रोवाइडिंग फ्रेश पोर्टेबल वाटर। और थर्मल कलेक्टर तो मैंने बताया था, ये बुकलेट में लिखा हुआ है कि दो तरह के डिवाइसेस होते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और एक हीटिंग के लिए। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग डिवाइस में सोलर थर्मल कलेक्टर STPC मैंने लिखवाया हुआ है किताब के अंदर। पेज नंबर भी आपको बताया जा सकता है कि जिस पेज नंबर पे लिखा हुआ है बुकलेट में कि STPC का कहां इस्तेमाल है, तो ये STPC कोई कैसे भूल सकता है? ये STPC तो सबसे बड़ा हिंट था उसका। अगर आपको ये रहे दिमाग में कि भाई ये कहां से आया, तो वहां पे लिखा हुआ है क्लियरली। अगर सोलर सेल की आप बात करें, तो आप जब अपनी बुकलेट 2 खोलोगे, और भैया अगर आप देखोगे कि आपके पास जो है पेज नंबर, अगर मैं जाऊंगा तो पेज नंबर 159 पे लिखा हुआ है
एक ही वर्ड लिखा हुआ है। मतलब मजे की बात देखो, उस बुकलेट में 159 पेज पे एक ही वर्ड लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो यहां लिखा हुआ है, और उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है सोलर कलेक्टर्स या सोलर थर्मल पावर कलेक्टर्स। सो सोलर थर्मल कलेक्टर्स तो डेफिनेटली इसी का पार्ट था। और मुझे अब ऐसा लगता है कि ये सबसे तगड़ा हिंट था इस क्वेश्चन में कैच करने का, कि सोलर थर्मल कलेक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज होते हैं। ये आपकी बुकलेट में से सवाल है, ये वर्ड डायरेक्टली वहां लिखा हुआ है। इसको डिनाई कैसे कर दे हम लोग, आप बताओ खुद से। ये डिनाइबल है ही नहीं बॉस, ये वहां लिखा हुआ है कि सोलर थर्मल कलेक्टर आर यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जिसमें आप तीन डिवाइस पढ़ते हैं, सोलर ट्रफ, ठीक है, पावर टावर और पैराबोलिक डिश। मैं आपको बता रहा हूं कि कहां से पकड़ा है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने एनर्जी पढ़ाया तो मुझे पता है। तो ये तो सबसे तगड़ा हिंट हो गया। D2 तो एक ही ऑप्शन में था, तो अगर इसको आप पकड़ लेते तो आप वैसे जीत जाते कि पहला आंसर है साहब। क्लियर है, सबको समझ में आया कैसे कैच करना था इस क्वेश्चन को? अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूं कि हाउ टू ऐड समथिंग लॉजिकल टू देम। पर इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये जितना आपने इसको बना दिया या किसी स्टूडेंट ने इसको गलत करके बना दिया। दो तो बहुत ही इजी हिंट थे, सोलर ओवन और सोलर थर्मल कलेक्टर। कोई इस बात को चाहे माने चाहे ना माने, ठीक है, ये लिखा हुआ है एकदम वहां बुकलेट के अंदर, थर्मल कलेक्टर। तो सोलर ओवन मैंने आपको बता ही दिया, सोलर ओवन कहाँ यूज होता है भाई, ठीक है, यू कैन सी इट हेयर। अगर सोलर ओवन और सोलर कुकर, दूसरा नाम सोलर कुकर ही है इसका। यूज सनलाइट टू हीट, कुक और पास्चराइज द फूड और ड्रिंक। इट कंसंट्रेट द सनलाइट इनटू द कुकिंग वेसल, एक्टिंग एज एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल फ्यूल। जो आप बचपन में प्रोजेक्ट बना के ले जाते थे सोलर कुकर 10th क्लास में, ये वही सोलर कुकर है, ठीक है, राइट। तो ये आपका एक हो गया। उसके बाद जो बात हुई है सोलर क्लिंस की, तो मैंने बता दिया ड्राई करने के लिए भी यूज दैट। So a solar kiln is primarily used for drying the product, especially timber or agriculture product. It is used solar energy to heat the air, which then circulate and then remove the moisture from the material placed inside. तो जैसे आपका एयर फ्रायर टाइप का डिवाइस है, उस तरह की चीज है ये, है ना। सोलर स्टिल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, क्योंकि सोलर स्टिल एक नए तरह का डिवाइस है जो अभी अभी फैशन में या प्रचलन में आया है, जो लोग यूज करते हैं, बाहर बहुत यूज हो रहा है। तो वी कैन से दैट व्हाट एक्चुअली द सोलर स्टिल इज। तो सोलर स्टिल की अगर मैं बात करूं, तो सोलर स्टिल इज अ डिवाइस दैट यूज सोलर एनर्जी टू डिस्टिल्ड वाटर। ड्रॉपलेट्स बनाने में काम आता है वाटर ना, ठीक है, वेपर से उसको डिस्टिल करेगा और वाटर में कन्वर्ट करेगा। इट वर्क्स बाय इवापोरेटिंग इम्प्योर वाटर यूजिंग सनलाइट एंड देन कंडेंस द प्योर वाटर वेपर। ये ध्यान रखना है कि ये पानी बनाने के आपके काम आता है इम्प्योर वाटर से, उसको इवापोरेट कराएगा और प्योर वाटर को कंडेंस करेगा और फ्रेश पोर्टेबल वाटर आपको ये प्रोवाइड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इसको स्टार लगा लेना। सोलर स्टिल आपको दोबारा भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पहली बार अपीयर हुआ है एनटीए की हिस्ट्री में ना, सोलर स्टिल एग्जाम के अंदर। सोलर थर्मल पावर कलेक्टर तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये आपको पता ही है सोलर थर्मल पावर कलेक्टर क्या होते हैं, विच इज बेसिकली यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। और इसमें तीन तरह के डिवाइस है, पावर टावर, ठीक है, सोलर ट्रफ, पावर टावर एंड पैराबोलिक डिश, ये आपको बताया गया है। तो a solar thermal collector is a device designed to absorb sunlight and convert into heat, and this heat can be used for various purposes such as heating, water for domestic use, space heating, electricity generation, ठीक है, concentrate the solar power plant. However, the most common direct use is to generate the electricity, especially in large scale appliances where the heat is used as to run the turbine. तो ये तो हमने पढ़ा ही था, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। सो द करेक्ट आंसर फॉर 130 विल बी 1। और ये हिंट यहाँ पे सोलर थर्मल पावर कलेक्टर था एक्चुअली में गाइस, वो ज्यादा बड़ा हिंट है, डायरेक्टली बुकलेट में लिखा हुआ है आपकी। तो सोलर थर्मल पावर कलेक्टर और इसके बीच में एक सिंक्रोनी बैटरी थी D2, और D2 एक ही ऑप्शन में था गाइस फर्स्ट में। तो द करेक्ट आंसर फॉर 130 इज फर्स्ट। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? जल्दी बताइए, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, जल्दी से। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हियर? चलो जी, if no doubt, then we are done for today, and now we are not left with many, and we will take a big class and we will be done for the same, right?
बट इनको आप पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि मेरा अपना दिल कहता है, अपना एक्सपीरियंस कहता है, बहुत कुछ आपको मिलेगा इस बार के पेपर में ना, इन एंड अराउंड इन क्वेश्चंस के भी। राइट, फॉर श्योर आपको दिखेगा ये। ठीक है, 25 तारीख को आपको ये दिखेगा। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास एट 7 फॉर एनर्जी। राइट, एंड अब हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन इसमें बचे नहीं है, सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हैं, बाकी तो पैसेज है। दे आर द गेम ऑफ 5 minutes। राइट, सो सी यू गाइज in the next class at 7 for energy. Those who wish to be there, they should be there. And today everything will end up, जो भी मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट है वो एंड अप हो जाएगा, तो मैं डिस्कशन का ही टाइम बस बचेगा खाली, और कुछ नहीं बचेगा। सो सी यू गाइस, टेक केयर टिल देन।